Dear teachers, I welcome you all for this much needed session on managing behavior issues of children. For this, I am glad we have a prominent figure in the field of psychology. This individual stands out for an insightful perspective and notable achievements. As a behavior analyst, she excels in addressing complex issues of human behavior, which is invaluable in the field of education and mentoring. She has an accomplished background in education with PhD in counseling psychology and a postgraduate diploma in guidance and counseling from NCERT, New Delhi. Her contribution includes psychological counseling, training and workshops at reputed centers, NGOs and prestigious universities like BMOU, Career Point University, ICT Jaipur, Banastali, Gurukul Kamli. MAM has played a pivotal role in shaping curricula and practical assignment for esteemed national and international institutions. Serving as a spot evaluator for relevant exams like RPSC, she has authored more than 50 research papers and 10 plus book chapters based on psychology and behavioral science. Not only this, she heads Muskan Counseling Center as a director, which not only handles the usual cases, but also assists renowned institutions like Allen, Army Wives Welfare Association, VMOU, and the list goes on. She has supervised 4 master dissertations. Her strengths lies in faculty development programs and achievement motivation training. Her vision and approach is also applauded at TEDx stage. Beyond her professional endeavors, she has actively contributed to societal welfare, particularly in uplifting rural women on massive scale. Being resource person, educational counselor, and innovative educator, today she will share with her extensive experience in dealing behavioral issues. Let's draw upon the maximum from her rich treasure of thoughts. It comes to no surprise that I am mentioning Dr. Sarika Mohta ma'am, and I firmly believe that through today's session, we will continue to grow as teacher under her wings. Thank you. I welcome you, ma'am. Aggressive. मैम लिखिए प्लीज. मैम ये तो हमको पता है. आप कौन सा लिखना शुरू करिए. Aggressive behaviors. Anything else? Yes, ma'am. बच्चे सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या-क्या देखकर आते हैं, तो क्लास में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मिसबिहेव होता है. Misbehavior. वो कहीं से भी आता है, उसको बोले तो हम misbehavior की बात करते हैं. Anything else? Lack of concentration. पीछे कुछ बताना चाह रहे थे, किसी ने हाथ खड़ा किया था. Lack of moral. 15 seconds. Yes. You were saying something. Distracted, lack of concentration, and hyperactivity. Yes. Anyone else? आपने किसी ने बोला था जैसे lack of moral values. Yes, please. Stubbornness. लिखिए मैम stubbornness. Yes, please. Anyone else? पीछे वाले teachers. मेल टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट से. उनकी क्लासेस बिल्कुल बढ़िया से चलती है, राइट? डरते हैं बच्चा आपको से है? Yes, please. Over pampered. ये प्रॉब्लम कहाँ से फेस कर रही हो आप? नहीं, ये तो आप मुझे बता रही हो रीजन. मैं पूछूं what behavioral problem you face in the class? It can be the reason behind, right? What problems you are facing in the classes right now when you are dealing with the students? Yes, please. Unwillingness to study. Yes, please. पीछे से मैं बोल रहा था. Giggling with student without any reason, right? सबको कुछ ना कुछ problems feel होती होगी ना, face करते होंगे आप लोग challenges. तो मैं कहती हूँ सब आगे बोर्ड पे कि अभी भी कोई बाकी है. Slow writers, slow learners. ये behavioral problem नहीं है मैम, बट ठीक है आप लिख लीजिए. Yes. हाँ तो नहीं पढ़ते हैं, but this is not a behavioral problem, right? but ठीक है.
वो अपनी पसंद का ही पढ़ना चाहता है। सबने अपनी बात बताई, तो सबसे पहले हम ये बात समझे कि हम इनको बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये एक्चुअल में जिनको हम बिहेवियरल इश्यूज या बिहेवियरल प्रॉब्लम कह रहे हैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है या नहीं, या ये बच्चे का जेन्युइन बिहेवियर है, इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। जब लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है, और उन हार्मोनल चेंजेस के इफेक्ट की वजह से उसके अंदर शी इज शोइंग सम पर्टिकुलर बिहेवियर, राइट। या मान लीजिए मैंने ड्रिंक किया है, और ड्रिंक करने के बाद में आई एम डूइंग समथिंग, मैंने कोई मेडिसिन लिया है, और उस मेडिसिन को लेने के बाद में आई एम शोइंग सम पर्टिकुलर बिहेवियर। क्या आप ये कहेंगे मेरा बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मेरा बिहेवियरल इश्यू है? फ्यू थिंग्स हैपन, राइट, किसी वजह से, कोई कारण से, राइट, तो हम उनको क्या बोलेंगे? दैट हैपन, समटाइम्स इट्स अ चांस फैक्टर और बिकॉज ऑफ समथिंग, एनीथिंग, राइट, तो उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल टीचर्स, एज अ टीचर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड the developmental stages of the student, the developmental stages. So few things are the age appropriate. अगर वो हो नहीं है तो they are not the matter of concern. अगर वो नहीं हो रही है then they are matter of concern. For example, 6, 7, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7 तक मोटा मोटा, ठीक है। ये जो बच्चे हैं इनके अंदर आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। हर काम खुद करना है, लड़के अलग लड़कियां अलग। उस समय आप कोई भी काम इनको ग्रुप में करने को बोलोगे, देन बॉय रेजिस्ट एंड गर्ल्स रेजिस्ट, ठीक है। लड़कियां कहेंगी नहीं मैम, हम लड़कों से बात नहीं करेंगे, हम लड़कों के ग्रुप में नहीं करेंगे, वी विन, वी आर बेटर देन देम। इस तरह की चीजें आप लोग क्लासेस में फेस करते होंगे बिफोर दैट व्हाट वी कॉल टीनेज। उसमें जो बच्चे एंटर करते हैं उससे पहले, हैव यू ऑब्जर्व दिस? तो मैं क्या ये कहूं कि बच्चा कोऑपरेटिव नहीं? क्या मैं ये बोलूं, ये बोलना बिहेवियरल प्रॉब्लम है? नहीं। व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएट टू हिज एज। वो जिस एज में है उस एज एप्रोप्रिएट वो बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेफिनेशन में, मैंने इसमें डेफिनेशन में लिखी है, साइकोलॉजी में हम किसी भी चीज को तभी बिहेवियरल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं जब बच्चा उसी तरीके का कंसिस्टेंट बिहेवियर 6 महीने और उससे भी ज्यादा समय तक शो करता है, जिसकी वजह से बाकी चीजों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो आपके वंस इन अ वाइल्ड इश्यूज है, वी कांट कैटेगराइज देम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। सेकंड थिंग, द थिंग्स व्हिच आर एज एप्रोप्रिएट कांट बी मेंशन्ड एज बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि बच्चा इंटेंशनली कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है भी या नहीं। सेकेंड थिंग, जब बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस समय पर अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज नॉर्मल। बच्चा हीरो वर्शिपिंग कर रहा है, ठीक है, उसको कोई फिल्म स्टार अच्छा लग रहा है, इवन यदि बच्चे को क्लास में टीचर अच्छा लग रहा है, वो टीचर को एडमायर कर रहा है, या टीचर से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मैम आप बहुत अच्छे से ये कर रही है, तो वुड यू कंसिडर इट बिहेवियरल प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉर्मल, बिकॉज इन दैट एज फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज नॉर्मल। अगर बच्चा ये नहीं फील कर रहा है, नहीं हो रहा है उस बच्चे के साथ में, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो अभी जो मैम ने मेंशन किया कि जब भी किसी लड़की और लड़के का काम साथ साथ आता है तो बच्चे हंसते हैं, इट्स नॉर्मल। आप समझ रहे? अगर आप इसको बिहेवियरल प्रॉब्लम कहेंगे तो जिंदगी में कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं, आप लोगों ने बीएड किया है? जब बीएड करते हैं तो साइकोलॉजी का एक पोर्शन पढ़ाया जाता है जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी एक पार्ट है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बताए जाते हैं बच्चों के, कि बच्चों के क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। कॉग्निटिव माइलस्टोन क्या है, सोशल माइलस्टोन क्या है, इमोशनल माइलस्टोन क्या है, फिजिकल माइलस्टोन क्या है, राइट। किस एज में बच्चा चलना सीखेगा, किस एज में बच्चा बोलना सीखेगा,
किस एज में उसका कितना कितना डेवलपमेंट होगा, राइट? तो ये चीजें अगर उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो दे आर नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग टीचर, आई डोंट नो आप लोग इस चीज से कितना मतलब परिचित हैं या इस चीज को कितना समझते हैं। अगर नहीं समझते तो सबसे पहले यहां पर हम चीजों को सबसे पहले इस चीज को समझना शुरू करें। दूसरा, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताइए, नेक्स्ट, यस, जो बच्चों में प्रॉब्लम्स है, जितने भी बिहेवियर्स है, ठीक है, उसकी सिंगल वजह बच्चा नहीं। समटाइम्स जस्ट इमेजिन, बच्चे के अंदर जो भी चीज है, बच्चा जो है वो घर में भी रहता है, वो बच्चा वैसे ही बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। क्लास में वो आके बैठा और टीचर ने भी किसी बात पे उसको किसी बात के लिए टोक दिया। अब अगर उस बच्चे ने उस समय रिएक्ट किया तो मैं क्या कहती हूँ, तुमने मुझे इंसल्ट किया, तुम्हारा बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं मालूम, आप समझ रहे? और उस समय क्या करते हैं, उस बच्चे के सामने और उसको उसी समय बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि दैट टाइम ही इज नॉट इवन इन अ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट टू लिसन। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? समटाइम इट्स हैपेंड विद यू, घर पे किसी बात से लड़कर आए हैं और जैसे ही आप वहां पर एंटर करते हैं प्रीमाइसेस के अंदर, मान लीजिए रमा मैम ने बोला हेलो मैम मुस्कुरा के, और आपने उनको देखा है, होता है? आपको रमा मैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट इन अ मूड, in a state where you can answer, that's why you are not answering. Just imagine, उसी समय में आपको भाग के पकड़ लूं और फिर मैं आपसे कहूं मैडम आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है, आप लड़ाई कर रही है मुझसे, आप बदतमीजी कर रही है मेरे साथ में, क्या होगा? आप समझ पा रही है मैं जो कहना चाह रही हूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ टीचर, मैंने बुलाया इसलिए आप सबको कि सबसे पहले बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एल्डर, राइट, बीइंग एडल्ट्स, हमको ये समझना जरूरी है कि जिन चीजों को हम बिहेवियरल प्रॉब्लम कह रहे हैं, इश्यूज कह रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी है या नहीं है। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली समय के साथ रिजॉल्व हो जाती है। Am I clear to all of you? इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा अभी तक? कोई है जो मेरी बात से ऐसा सहमत है यहां तक? पहला पॉइंट मैंने बोला कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर बच्चा उस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, दैट विल नॉट कम और फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसमें समझने में कहीं कोई समस्या है? सेकंड मैंने बात की कि जो बच्चे का बिहेवियर है वो केवल उस बच्चे से ही वो नहीं होता, उसके पीछे फैमिली का भी रोल है, स्कूल का भी रोल है, सब चीजों के बीच है। और अगर वो इमीडिएटली किसी और कारण से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर वजह से, ऑन अ पर्टिकुलर डे, राइट, एंड वी मार्क इट एज अ, इज इट ओके टू डू इट? नो। कभी सोचेगा जब बच्चा क्लास में आता है, ठीक है, और आपने उसको बोला खड़े होइए, उसका मन नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, उसका कुछ भी नहीं, उसको किसी तरीके से आप बोल रहे हो अथॉरिटी तो खड़ा हो जाता है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, उसके बावजूद भी बिकॉज यू आर अ टीचर, यू आर अथॉरिटी, तो आप क्या करते हैं? आप समझ रहे? उसके बाद फिर वो बच्चा अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या आपकी बात नहीं सुनता, डिसरिस्पेक्ट नहीं कहूंगी, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है बिकॉज इज नॉट इन अ मूड, और हम उस समय क्या करते हैं? उसको अपना ईगो इश्यू बना लेते हैं। हम जिद पर तो आते हैं ना, जिद करना बच्चों का स्वभाव है कि बड़ों का? जिद करने का अधिकार बच्चों को है कि हमें? जनरली सोचिएगा कि आपको 99% प्रॉब्लम्स जो क्लासरूम में फील होती है, आई कैन गारंटेडली टेल यू कि वहां पर अगर उस समय आप उस बात को अपना ईगो इशू नहीं बनाए, अपने सम्मान पे नहीं लाए, आप जिद पर नहीं करें, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत बार हम केवल और केवल चीजों को बड़े इश्यूज इसलिए बना देते हैं जो कि इजीली इग्नोरेबल है, क्योंकि हम उनको अपना ईगो इशू बना देते हैं। आपको एक बात मालूम है, हमारे संविधान में 16 ईयर की एज तक बच्चों को माइनर्स बोलते हैं। पता है माइनर क्यों बोलते हैं? एनीवन कैन टेल विश्व से माइनर क्यों बोला जाता है बच्चों को? उनको एडल्ट क्यों नहीं बोलते? और उनके लिए क्यों विशेष प्रावधान को सुधार गृह में क्यों भेजा जाता है? उनको जेल में क्यों नहीं भेजा जाता सीधे? एनी रीजन कोई बता सकता है? एनीवन पीछे से?
पीछे से बोलिए टीचर को। यस सर। हाँ जी। ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है। ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है। ओके, एनीवन एल्स? मे बी मेंटली और इमोशनली डेवलप। मेंटली और इमोशनल इतना मैच्योर नहीं होते। और एनीवन जो इसमें ऐड करना चाहेंगे? It is the age when they can be molded further and they can be taken back to the normal situation. राइट। There's a problem. समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को वहां पर हम सुधार सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। एनीवन एल्स हु वांट टू ऐड ऑन? एनीवन? They cannot differentiate between good and bad. नो दे कैन। बच्चा शुरू से डिफरेंशिएट कर सकता है, वो सबकॉन्शियस प्रोग्राम में। एनीथिंग एल्स? शुड आई टेल यू? बिकॉज a child is not aware of the consequences of his behavior. Are you getting my point? बच्चे क्या करते हैं? बदमाशी करते हैं क्लास में। मान लीजिए मैम ने कुछ लिखा और उसको उन्होंने छेड़छाड़ किया और उसमें नंबर चेंज कर दिए। वो उनके लिए क्या है? कई बार मजाक है, कई बार फन होता है कि वो मजे के लिए करते हैं, और कई बार वो केवल डांट से बचने के लिए वो काम करते हैं। कि उनकी इंटेंशन इससे ज्यादा कुछ होती है क्या? किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कांचों में हेरफेर करना, कोई और उनकी वजह होती है? नहीं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि कोई डॉक्यूमेंट है विच इज साइंड बाय द प्रिंसिपल डीडीपीएस। ठीक है, और बच्चे को ये चीज क्या है? बच्चे को उसमें से मान लीजिए मैम ने एक लिस्ट बनाई जिसमें सारे बच्चों के बाहर जाने वाले बच्चों की लिस्ट थी। ठीक है, बच्चे को वो लिस्ट मिली। बच्चे को क्या लगा, अगर मैं मैडम की साइन की लिस्ट में अगर अपना नाम ऐड करके ये कर दूं तो मैं भी स्कूल से बाहर जा पाऊंगा। राइट? इसके अलावा कोई इंटेंशन बच्चे की? लेकिन क्या उस बच्चे को ये पता है कि when once the document is signed and sealed by authority, अगर मैं उसमें कोई भी चेंज करूं, it can be a legal issue? इसके लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है? क्या पता है उसको? आप समझ रहे हैं? Every behavior, every action has some consequences, right? लेकिन इस एज तक बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि उनको ये पता हो कि मैं ये करूंगा तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये करना मेरी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। इसलिए कोर्ट भी उनको क्रिमिनल नहीं मानती है। कोर्ट क्या मानती है कि उनसे ये हो गया, दे आर द जुवेनाइल, और अगर हम उनको सुधार गृह में भेजें तो उनको ठीक किया जा सकता है। Am I right? सही कह रही हूं मैं? लेकिन अगर आप मतलब सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर हम अपना बिहेवियर देखें ना तो पता है सबसे नीचे तो मेरे लोगों से बात करते समय फील के टीचर मतलब टीचिंग फ्रेटर्निटी से जो बात करते फील है, मैं जानबूझ कैसे करता है, मैं इसको इतनी बार समझा दी कि ऑलवेज डू द सेम। ठीक है, क्यों करेगा वो जानबूझकर? आप समझे पागल है, दिमाग खराब है उसका? नहीं ना, उसकी उतनी ही समझ है। आप समझ रहे? बिकॉज सबसे मेन रीजन क्या है, बच्चे को ये नहीं पता कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय बिहेवियर। और कई बार जो आपको ऐसी घटनाएं दिखती नहीं, इवन सोसाइटी में जो घटनाएं दिखती हैं, कई बार वो बच्चे करते नहीं है, वो कई बार हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, मैं बैठ फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और मैंने इस दीवार को लात मारी, क्या होगा? थोड़ी बहुत लगेगी, ठीक हो जाएगा। मुझे गुस्सा आया, मैं अभी यहाँ इसके ऊपर खड़ी थी, मैं नीचे कूद गई, क्या होगा? और मान लीजिए जिस समय मुझे गुस्सा आया उस समय मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, मैं छत पे खड़ी थी, गुस्सा आया, सेकंड्स का काम था, मैं छत से कूद गई तो क्या होगा? मेरी इंटेंशन थी क्या सुसाइड करने की? क्या था? इट वॉज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ दोज सेकेंड्स। और मैं फिर आपसे कह रही हूं, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, सबसे पहले बीइंग अ टीचर, अगर आप अपने बच्चों की जितनी भी जितनी भी बातें उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो प्रोग्रेस करे, वो एक अच्छे सिटीजन बने, तो सबसे पहले आपको एक सही पर्सपेक्टिव उनके लिए रखना पड़े। ठीक है, आई ऑल्सो फेल्ट वन वेरी कॉमनली, बताओ मैडम ये बच्चा ही है, वी नेम द किड्स, कोई भी नाम निकालो, कोई भी एनीथिंग, सोनल, ये सोनल मैम क्लास में हमेशा ऐसे ही करती है, ये पता है मैडम ये सबकी क्लास में ऐसे ही करती है। फिर टीचर्स पता क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एक जो है वो दूसरे को और दूसरा तीसरे को कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और सबके सब उसके बारे में धारणा बना लेते हैं कि सोनल
ऐसे ही है और ऐसा ही करती है। आपने ना मार्किंग कर दी है, ठीक है, आप लोगों ने मार्किंग कर दी है। अब आपको लगता है समझ में कोई चेंज आएगा? ऐसा हम क्लासेस के लिए भी करते हैं। वो थर्ड बी है ना, वो तो है ही ऐसी, वो जो दैट ए है ना, वो तो है ही ऐसी। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। मतलब ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, इन चीजों को मैं एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकती हूँ। हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर भी सकते हैं जिससे आप ये समझ आएंगे। आपको पता है साइकोलॉजिकल रिसर्च की गई, ठीक है, एक रिसर्च की गई जिसमें कि एक नए टीचर आने वाले थे, एक नए टीचर को क्लासेस को पढ़ाने का काम देना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, बच्चों को दो सेक्शन में सेग्रीगेट कर रखा था। सेक्शन ए में बहुत हाईली इंटेलिजेंट बच्चे थे और सेक्शन बी में सारे वो बच्चे थे जिनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी, ठीक है। लेकिन जब वो टीचर को ज्वाइन कराया गया तो उससे पहले उन्हें फीडबैक दिया गया कि जो सेक्शन बी है ना, दे आर द हाईली इंटेलिजेंट किड्स। इस क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइट। तो टीचर ने जाके क्या किया, क्लास में उन सारे बच्चों को वैसे ही ट्रीट, हैंडल और एड्रेस करना शुरू किया जो उनके पास फीडबैक था। उनके पास फीडबैक क्या था कि सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। और आपको पता है क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद जब उन बच्चों का असेसमेंट किया गया तो एक्चुअली में दे गॉट दोज ग्रेड्स। समझ पा रहे हैं? बच्चे क्या बिहेव करेंगे ये मैं डिसाइड करूंगी। अगर मैंने ये मार्क कर दिया ना, ठीक है, कि ये स्लो लर्नर है, मैं आपको गारंटी देती हूं वो बच्चा कभी भी नहीं बढ़ सकता आगे। और मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रही हूं बिकॉज आई एम वर्किंग, आई एटलीस्ट मींस द लास्ट 2 decades आई वर्क विद द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, आपके 12th के बाद जाते हैं, उनका बिल्कुल पीक एज होता है, टीनेज वाला, ठीक है। उनके सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, अफेयर, सेक्स, अबॉर्शन, सब चल रहा होता है, ठीक है। आप उनको देखेंगे तो क्या मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, खा खा के मोटे हो रहे हैं। और जैसे ही वो बच्चे वहां से पास आउट होते हैं, उनको समझ आता है उनको जिंदगी में कुछ करना है, 2-3 साल बाद वो बच्चे पहचान में नहीं आते कि वही बच्चे। और वो सारे वो बच्चे होते हैं जो अपने करियर के पीक्स पे होते हैं, मतलब जो अपने ऐसे प्रोफेशन में ऐसी जगह होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? हाउ दिस हैपेंड? आर यू गेटिंग? भारी हो रहा है मुझे पता है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, लेकिन एक तो हमारे पास स्ट्रेंथ इस समय बहुत ज्यादा है, प्लस एक्टिविटी करने का टाइम और स्कोप नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इट। बट हम लोग जनरली जब मैं सेशन करती हूँ, एक एक्टिविटी कराती हूँ, आप करके देखिएगा कभी अपनी क्लास में। मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी क्लास में करके देखिएगा। अपनी क्लास में क्या कीजिएगा, कुछ बच्चों को खड़ा कीजिएगा और उन बच्चों के ऊपर एक टैग लगा दीजिएगा। वो टैग उनको नहीं देखना चाहिए, उन बच्चों पर एक टैग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे पे टैग लगाना ऐश्वर्या राय, ठीक है, और एक लड़का कोई हो तो उस पर टैग लगा देना शाहरुख खान, जो भी आप समझते हो वो लगा दीजिएगा। और बाकी उस बच्चे को आईफोन कर दीजिएगा जिस पर आप टैग लगा रहे हैं, ठीक है। और बाकी बच्चों को आपको क्या बोलना है कि जो इसके टैग, इसके माथे पे लिखा हुआ है ना, उसका नाम नहीं बोलना है, आपको केवल उसको वो कॉम्प्लीमेंट देना है या वो बोलना है जब आप एक्चुअली में ऐश्वर्या राय से मिलते तो बोलते। तो आप क्या बोलोगे ऐश्वर्या राय से? अगर एक्चुअल में क्या बोलोगे? You are beautiful, you are attractive, confident, you are very confident, you are the Miss World. Miss World नहीं बोलना, तो आप बोलोगे you are the most beautiful women in the world. Anything? You have the such beautiful eyes. I want to be like you, and I guarantee you, क्लास में करके देखेगा ये एक्टिविटी, वो जो लड़की जिसको आपने हमको ऐश्वर्या राय लगाया है ना, अगर वो ऐसे भी रहती होगी ना, तो थोड़ी देर बाद पता है उसकी चाल पता है क्यों? How and why this happened? Because what you are saying to her, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, so being a teacher, you can feel that what power you have over kids. Are you getting my point? अगर आप मुझे रोज ये बोलोगी ना, इवन आपको पता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आर डन इवन ऑन प्लांट्स, इवन ऑन ट्रीज। पता है कोई बात? पौधों को भी यदि 2 पौधे ले लें और एक पौधे को रोज बोलो तू बहुत खराब है, तू बहुत खराब है, तू बहुत खराब है, आपको पता है वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। एक कहानी है बहुत पुरानी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक मंत्री को राजा ने कहीं भेजा था और उस मंत्री को मतलब राजा से मिलना था दूसरे दिन। तो उस राजा ने मुझसे बोला मुझे कब मिलेंगे?
तो कहते हैं वो बाहर पेड़ दिख रहा है देखो बरगद का, जब इसके सारी पत्तियां गिर जाएगी ना मैं तब तुझसे मिलूंगा। तो लोगों ने क्या सोचा होगा, इट्स इम्पॉसिबल टू मीट द किंग, बट यू नो व्हाट दैट मैन डिड, कुछ ही दिनों में वो पूरा पेड़ बिना पत्तियों का हो गया। जानते हो क्या उसने किया, उसने वहां जाके रोज उस पेड़ को अब्यूज करना शुरू किया। तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत गंदे हो, ठीक है, तुम्हारी वजह से सबको इतनी परेशानी हो रही है, यू आर गुड फॉर नथिंग। आपको पता है व्हाट हैपेंड, समझ पा रहे हैं? तो जिन बच्चों को आप हैंडल कर रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो लाइक दैट। और सबसे पहले बीइंग अ टीचर, इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस और क्रिएट अ डिफरेंस, सबसे पहले अपने दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए कि वो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। व्यक्ति वो देता है, व्यक्ति बाहर वो रिफ्लेक्ट करता है वो जो खुद होता है, वो दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब टोमेटो सॉस का बॉटल है, प्रेशर दूं क्या निकलेगा, टोमेटो सॉस निकलेगा, उसमें से ऑरेंज का जूस निकलेगा नहीं। तो अगर मैं परेशान हूं तो मैं परेशान हूं इसलिए मेरे अंदर से परेशानी निकल रही है। It's not because of you or I intentionally want to bother you or disturb you, right? So first of all, if really you want to make a difference being a teacher, सबसे पहले अपने दिमाग का ये थॉट बदलिए। और खासकर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि दे आर हैविंग टू मच प्रॉब्लम्स, और वो जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको सबसे पहले, सामने नहीं बोल सकते ना, सामने मत भी बोलिए तो कम से कम अपने मन में ये बोलना शुरू करिए कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अगर ये भी नहीं बोल सकते तो कम से कम वो बोलना बंद कीजिए रिपीटेडली अपने अंदर, जो आप बोलते हो कि तुम सब जानबूझ के करते हो, तुम बहुत खराब हो, क्योंकि आपकी जो थॉट की एनर्जी है ना वो ट्रांसफर होती है। मालूम है आपको, मैं यहाँ पर आई, मैं खड़ी हूँ, मैं बहुत एनर्जी से सेशन ले रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 3 बजे 2 बजे थक भी गए होंगे, बट क्या मेरी एनर्जी आप लोगों को ट्रांसफर हो रही है? क्या मेरी एनर्जी की वजह से आप एनर्जेटिक रह पा रहे हैं? अभी ये मैं सेशन लेना शुरू कर दूं? हाँ भाई ठीक है, बज गए 3। क्या सर थोड़े बाद जो लोग एनर्जेटिक होके आएंगे वो भी मेरे जैसे ग्रूमी हो जाएंगे ना, राइट? तो इसमें से जितनी भी बातें हमने जो लिखी है कॉमन प्रॉब्लम्स में, अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इनमें से कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और प्रॉब्लम का बाय प्रोडक्ट है या वो नॉर्मल है। आपको पता है बच्चे का नॉर्मल अटेंशन स्पैन कितना होता है? अटेंशन स्पैन कितना होता है छोटे बच्चों का? बताएं, छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन कितना होता है? 1 सेकेंड। और बताएं, पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा, गूगल करिएगा, बहुत ज्यादा है मैम, एडल्ट्स का नहीं है, ठीक है, रिसर्च करिएगा। अब उस बच्चे का अटेंशन स्पैन, राइट, अटेंशन स्पैन ही जिस बच्चे का मिनट या सेकंड्स में है, उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 45 मिनट की क्लास में वो पूरा अटेंटिव रहे। दूसरा बच्चा, दूसरी बात, छोटा बच्चा है, वो फिजिकल एनर्जी से भरपूर है, उसके पास बहुत सारी फिजिकल एनर्जी है, ठीक है। आजकल जो हमारा माहौल है, एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए ना, ये तो पता है ना सबको। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, बच्चे कितना बार खेलने जाते हैं, तो वो बच्चा जो फिजिकली बहुत एनर्जेटिक है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लास में आए और 6 घंटे में कोई चुपचाप एक सीट पर बैठे, एडल्ट नहीं हो जाएगा। आपको वो बच्चा अच्छा लगेगा? अगर ऐसा सूम सा बच्चा मुझे मिल जाए, मैं उसको हिला हिला कर थप्पड़ मार के पहले तो ये कहूँ थोड़ा हिल, तो कुछ बोल, बच्चा जैसा लगना चाहिए ना। वो बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं ना, बिकॉज दे आर गिगलिंग, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, राइट, दे आर ऑलवेज टॉकिंग एंड डूइंग समथिंग। वो ये क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर एनर्जेटिक एंड उनका जो एनर्जी है वो यूज नहीं हो पा रहा है। तो बीइंग अ टीचर, आपकी स्मार्टनेस किसमें होनी चाहिए? जो ऐसे बच्चे हैं उनसे थोड़ा काम कराइए, उनको जिम्मेदारी दीजिए। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? हर काम में होते हैं ऐसे बच्चे, दे आर बबलिंग विद एनर्जी, जितने भी काम कराने क्लास से बाहर जाने के, सामान लाने के, इधर से उधर करने के, आप अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। एक और प्रॉब्लम जो आप बच्चों के साथ
फेस करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं. Sometimes it's not even शैतानी, sometimes it's just to get attention. सबको अटेंशन अच्छी लगती है, आप बड़ों को अच्छी लगती है. यस, मैं अगर किसी का भी नाम लेती हूँ उसको मजा आता है कि नहीं आता, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, इंपॉर्टेंट फील होता है कि नहीं होता, होता है. अगर मैडम किसी बच्चे को क्लास में से बुला के कहे कि तुम जाकर स्टाफ रूम में ये रख के आओगे, उस बच्चे को कैसा फील होता है, इंपॉर्टेंट, अच्छा फील होता है, राइट. तो समटाइम्स फॉर किड्स इट्स जस्ट टू गेट अटेंशन. और आपको पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम तब तक बच्चे को अटेंशन नहीं देते जब तक वो कुछ गलत करके अटेंशन नहीं ग्रास्प करता. क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा वो कर रहा है जो हम तक चाहते हैं तो उसको करना ही चाहिए ना. सोच के देखिए, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सबको चाहिए होती है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंपैरेटिवली औरों के ज्यादा चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एंटर्ड इन दिस क्लास. ये क्लास मान लेते हैं, मुझे पहले से पता है कि देयर आर द फ्यू पीपल हु नीड अटेंशन, दे वांट टू फील इंपॉर्टेंट. वो तभी अच्छा सीखते हैं, उनका सेशन में मन ही तब लगेगा, मेरी बात सुनने में उनका मन तब लगेगा, वो सीखेंगे तब बेटर जब मैं उनको अटेंशन दूंगी. क्लास शुरू हुई, अगर एक काम में क्लास शुरू होते ही कर लूं तो समझ पा रहे हैं मेरी बात. जैसे कि मैंने चाना मैम से बोला था, हम आगे आगे बैठ जाएंगे. डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. कोई शफलिंग कर सकते थे आप, या किसी बच्चे से कुछ पूछ सकते थे, अच्छा कल क्या पढ़ा था अपन ने, कौन बताएगा, आज दीना पाठी बताएगी. बोल सकते हैं आज रेखा जी बताए, आज रेखा बताएंगी कि आज कल अपन ने क्या किया था. मिल गई अटेंशन. ठीक है. एग्जाम्पल देते समय इफ आई कोट द नेम, मुझे क्लास में समझ में आ रहा है पढ़ाते हुए कि इस बच्चे का अटेंशन बाइफरकेट हो रहा है. जिस भी बच्चे का अटेंशन बाइफरकेट होगा आपको आंखों से पता चल जाएगा टीचर्स, बिल्कुल पता चलेगा. तो जैसे उस बच्चे का अटेंशन बाइफरकेट हो रहा है, आपने किसी एग्जांपल में उसका नाम ले दिया, अब वो अटेंटिव होगा कि क्लास में नहीं. रूल बनाइए क्लास में, पता है क्या, जो भी मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, लास्ट में मैं उसकी समरी पूछूंगी या लास्ट में मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, राइट. आप मुझे बताइए वो बच्चा ध्यान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा. लेकिन पता है कब, जब आप एक्चुअली में पूछोगे. अगर आप लास्ट के 5 मिनट क्लास की प्लानिंग ऐसे कर लें कि लास्ट के 5 मिनट आप इस काम के लिए रख लें और उन बच्चों से पूछ लें, मैं गारंटी देती हूँ आपको, दे विल रिमेन अटेंटिव इन द क्लास बिकॉज देयर intention is not to disturb you or to disturb the class. Their intention is to feel important, to get attention. और वो नॉर्मल है बिकॉज क्लास में 40 बच्चे हैं, आप एक टीचर हैं, आप जो है उन बच्चों के लिए वो सिग्निफिकेंट अदर है जिनका अप्रूवल, जिनका एप्रिशिएशन उनके लिए मैटर करता है. मैं जिस टीचर को अपने कैबिन में बुला के 2 तारीफ कर दूं, अगले को कैसा घूमता हुआ मिलता है बाहर. कुछ तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं कि फिर वो कहते हैं कि डायरेक्टर मैडम से मिल के आया हूं मैं, डायरेक्टर मैडम ने बोला है मेरे कैसा करने के लिए, बाकियों की सुनते नहीं है वो. प्रिंसिपल मैम भी कहती है मुझसे, मैडम आप मत बुला के मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास जाने का तब से हैंडल नहीं होता है. क्यों? आप समझ रहे, आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए. दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. और जब ये एडल्ट के साथ हो रहा है और बच्चा कह रहा है तो कह रहे बदमाश है, शैतान है, बदतमीज है, मेरे को परेशान करना चाहता है. नहीं सोचिएगा कभी बातों को. मैं आज एक्टिविटी बेस्ड कुछ नहीं कर रही हूँ, हम लेक्चर पे ही बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा है और टाइम कम है. 3 बज चुके हैं, मेरे को फिनिश करना, राइट. कुछ क्यों आपको पर्सपेक्टिव दे रही हूँ ताकि आप सोच पाए कि जिन चीजों को आप कह रहे हैं कि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली है भी या नहीं, या मेरे को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. मुझे बिना टीचर ज्यादा अपना हॉरिजन ब्रॉड करने की जरूरत है. और एक चीज बताओ, हम क्या है बच्चों को शुरू से क्या होता है, शुरू से बच्चों को हैंडल करते हैं, राइट. तो हम कहते हैं छोटा जब बच्चा होता है तो हमको लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, मैं इसको सब कुछ सिखाऊंगी, इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करूंगी, राइट. तो हम उसको हर चीज में टोकते हैं, ऐसे बैठ, ऐसे लिख, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसा करते हैं
होता है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ टीचर्स जो छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं उनका भी प्रमोशन होता है और वो बड़े क्लासेस के टीचर बन जाते हैं, ठीक है। और फिर पता है वो क्या करते हैं, जो बिहेवियर वो नर्सरी, LKG, UKG या क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चों के साथ करते हैं, दे कंटिन्यू विद द बिहेवियर विद द क्लास 9 स्टूडेंट। जब आप इस जॉब में नए आए थे, ठीक है, तब पहली बार आपको ट्रेनिंग दी गई, आपको अच्छा लगा, आपको लगा आपने सीखा, आप आगे बढ़े। उसके बाद आपको क्लास लेते हुए महीना भर हो गया, 6 महीने हो गए और फिर भी आपके कोऑर्डिनेटर रोज क्लास में आके, मैडम चुप, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए। मैडम आप मतलब क्लास में पढ़ाते समय ना मोमेंट भी ज्यादा करती, थोड़ा कम चलिए, इस बात को थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे कहिए। अब आप सीखने के इरिटेट होंगे। अरे बेटे आप क्या करते हैं बच्चों के साथ, सोचिए, रिफ्लेक्ट होना आप क्या करते हैं बच्चों के साथ। वो बच्चा जिसको बचपन से सब सिखाते आए हैं वो 9th में आ गया, 10th में आ गया, 11th में आ गया, 12th में आ गया, एंड यू डू द सेम। बच्चों कीप साइलेंस, मुंह पे उंगली रखो, अगल बगल बात मत करो, ठीक है। तभी सोचिएगा कि जो हमारा डे टू डे का रूटीन है, उस रूटीन में आपने जगह दी बच्चों को आपस में फ्री कन्वर्सेशन करने की, बातचीत करने की। सुबह प्रेयर के टाइम आप कहते हो, क्या बोलते हो, सुबह बच्चा आया, आपने बोला लंच खा के क्लास में, प्रेयर में गया, लाइन बना के प्रेयर में, प्रेयर के समय कीप साइलेंस। उसके बाद क्लासेस में आप कह रहे हो कीप मम, टीचर पढ़ा रही है, टीचर क्लास में नहीं है तब भी चुप रहो, ठीक है। लंच में आप कहते हो कि मैं तो किसी टीचर की ड्यूटी लगाऊंगी क्लास में और वो टीचर के सामने सारे बच्चे खाना खाएंगे, वहां पर भी दे नीड टू जस्ट ईट एंड कीप साइलेंट, ठीक है। शाम तक यही। अब मुझे बताइए कि वो बच्चा बोलेगा, और अगर वो बोलेगा आप क्या कह रहे हो कि बदमाश है, ये बदतमीज है, ये दिन भर चक्कर करते रहते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये हमारी प्लानिंग का प्रॉब्लम है, ये बच्चों का प्रॉब्लम है। एक काम करूं, आप लोगों को आइसोलेट करके देख, मैं आप लोगों को एक आइसोलेट कर देती हूँ, आप लोग रह लोगे ऐसे, रह लेंगे सारे? नहीं ना, बिकॉज keeping social connection is a basic human need, ठीक है। और उन बच्चों के साथ बताऊं उनको क्लास दी, फिर वो घर जाते हैं बेचारे, घर जाके वो सोचते हैं कि घर वाले सुनेंगे, वो जाते मम्मी बताया आज क्या हुआ, मैं भी खाना बना रही हूँ, बाद में बात करूँ। ऐसा होता है, पापा सुनो, मैंने वो क्या बोलते हैं, मैं भी मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। बेचारा बच्चा बात किससे करे, कोई नहीं सुनता। और एक मजा बताऊं, इससे भी बड़ी त्रासदी क्या है, घर वालों से बात करो, मैडम सारा जीवन इन्हीं पे कुर्बान है, सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, और जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए 5 मिनट नहीं है किसी के पास, ठीक है। स्कूलों से और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, सब कुछ इनके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप उन बच्चों की बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आइसोलेशन के लिए ग्रोथ होती है क्या, मेरे को आपको बड़ा व्यक्ति बनाना है, ठीक है, तो क्या करूं, दुनिया से काट के एक बंद कमरे में आपको 24 घंटे पढ़ाऊं लिखाऊं, टाइम टेबल से तो बन जाएंगे या बने नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली बच्चे जो है, आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, 10th क्लास तक एटलीस्ट। आपको एक बात मालूम है, यस प्लीज, यस, एटलीस्ट 10th क्लास तक, 13-14 साल तक बच्चे का अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो फिजिकल है, वो अलग बात है, उसके अलावा बच्चे का अपना कोई प्रॉब्लम 10th क्लास तक नहीं होता है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम बच्चे में दिख रही है, दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग, what schools are doing, what all the adults around the child is doing. अगर एक बच्चा abusive language यूज कर रहा है, आप रिसर्च कर लीजिए, आप उस बच्चे का थोड़ा होमवर्क करिए, आपको पता चल जाएगा उसकी पेरिफेरी में ये हो रहा है, वो ये देख रहा है, वो केवल उसको रिपीट कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? मैं पेरेंट्स से भी यही बात कहती हूँ, टीचर से भी यही बात कह रही हूँ, आपको जितनी बच्चों में प्रॉब्लम दिख रही है ना, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग, राइट, दे आर नॉट द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जेन्युइनली वो फिजिकली उनकी आईसाइट वीक हो, उनकी हियरिंग वीक हो, या वैसे उनके दिमाग
कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट? और आपको पता है बच्चे सीखते कैसे? सिंपल प्रिंसिपल पता है क्या? जिस भी बिहेवियर को, मैं खत्म करूंगी लास्ट पर बोल के, आप चाहे तो रीइंफोर्समेंट साइड लगा सकती हैं। इससे पहले वाला, जिस भी बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है वो मैं दोबारा करती हूं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने खड़े होकर पोएम बोली तो मेरी मम्मी के चेहरे पे स्माइल आ गई, मम्मी मुस्कुराई। या मेरी मम्मी काम कर रही थी जो कभी मेरे तरफ नहीं देखती, जैसे मैंने वो पोएम बोली तो मम्मी मेरी तरफ देखने लगी। इट्स अ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट केवल यही नहीं होता। रीइंफोर्स मतलब सिंपल भाषा में कोई इनाम कह लीजिए, रिवॉर्ड कह लीजिए, वो केवल यही नहीं होता कि मैं आपको ट्रॉफी दूं या कोई चीज दूं। हर चीज, रीइंफोर्समेंट कैन बी टेंजिबल, कैन बी इंटेंजिबल, दैट कैन बी प्रेज, दैट कैन बी अटेंशन, दैट कैन बी एनीथिंग। तो आप जिस भी मेरे बिहेवियर को, जिस भी मेरे कार्य को करने पर मुझे अटेंशन मिलती है या मुझे किसी भी फॉर्म के अंदर रीइंफोर्समेंट मिलता है, मैं उस बिहेवियर को दोबारा करती हूं। और जिस चीज को मुझे रीइंफोर्स नहीं किया जाता उस काम को मैं छोड़ते चली जाती हूं। समझ गए मेरी बात? क्लियर है हमको कंफ्यूजन है? तो अब आप सोच के देखिए, मेरा बच्चा जब क्लास में ढंग से बैठता है तब तो मेरे को कुछ नहीं, जैसे ही मेरी क्लास में किसी बच्चे ने कुछ हरकत की, हाँ बोलो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मैंने क्या किया, क्या दिया मैंने, चाहे मैंने कुछ भी बोला, मैंने क्या दिया, अटेंशन दिया। बच्चा क्या चाह रहा था, अटेंशन, राइट? सही कह रही हूँ। यही वो समस्या है जो आप खासकर सीनियर टीचर्स फेस कर रहे हैं क्लासेस के अंदर। बच्चा जो है, आप चाहते हैं जो बिहेवियर नहीं करे, आप उन सारे बिहेवियर को अटेंशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपनी सीट से उठा, वो इधर हुआ, आपने टोका, आपने क्या दिया, अटेंशन। अच्छा है, कम से कम हमने इस बहाने देखा तो सही, ठीक है, कम से कम बात तो की। लड़के मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। डाटा तो क्या हुआ, समझ रहे? ये सेम चीज आपके बच्चे सोचते हैं, क्योंकि सोचिए अभी हमने 10 मिनट पहले बात की है, आपको समझ आ रहा है वो कितने डिप्राइव्ड है टेंशन से। ना घर वाले अटेंशन दे रहे हैं, ना स्कूल वाले दे रहे हैं। सुबह से शाम तक आप क्या कहते हो, एक धर्रे पे चलो। बच्चा नहीं चल सकता, तभी वो बच्चा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, टेक इट एज अ बेसिक प्रिंसिपल। जिन भी चीजों को आप चाहते हैं, जिन भी बिहेवियर्स को आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रिपीट नहीं करें, काइंडली स्टार्टिंग इग्नोरिंग देम। समझ रहे हैं मेरी बात? वो इससे बात कर रहा था, उसने इसके कान में कुछ फुसफुसाया, वो मेरे को देख के हंसा, वो उसको देख के हंसा, उसने आंखों में इससे बात की। इग्नोर दीज बिहेवियर्स और what to appreciate or what to give attention when what behavior you desire. For example, एक बच्चा जो हमेशा पीछे बैठता है, आगे आगे बैठा, point out. I'm really glad that मैडम आज आप अपने आप आके आगे बैठी, ठीक है? कोई बच्चा जो क्लास में नहीं बोलता, जवाब नहीं देता, appreciate that. गलत भी बोला है तो समझ रहे? I'm really glad, I'm really happy, I really appreciate that you answered. एक बच्चा यदि 5 मिनट सीधे बैठा, जो क्लास में कभी ढंग से नहीं बैठा हो, इसने उसे किया appreciate, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों से कनेक्ट होना पड़ेगा। समझ रहे? बच्चों से कनेक्ट होंगे तभी तो पता चलेगा ना। बच्चे के एक बच्चे का पता चलना पड़ेगा। मुझे क्लास में 40 बच्चों का पता होगा, तभी तो मुझे पता होगा ना कि कौन क्या करता है और आज किसने क्या किया। गॉट माई पॉइंट? और बिना कनेक्शन के कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है, डांट उसी की असर करती है जो प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता उसकी डांट की और उसकी इग्नोरेंस की भी कोई वैल्यू नहीं है। मालूम है ये बात? अगर मैं चाहना मैम से रोज प्यार से मिलती हूँ, जब भी मिलती हूँ मैं इनको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, तो क्या लगता है, वी हैव अ कनेक्शन। अगर एक दिन मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूं तो चाना मैम ने बिकम अनकंफर्टेबल। व्हाट हैपेंड? सारिका मैम ने आज जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ गड़बड़ की, मैंने कुछ किया। दिस इज द वे यू कैन हैंडल योर स्टूडेंट।
अगर आप रेगुलर बेसिस पर उनसे कनेक्शन मेंटेन करते हैं, राइट, आप उनको रेगुलर बेसिस पे अटेंशन देते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब वो बच्चा गड़बड़ करता है, ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो अटेंशन देना बंद कर दो, ठीक है। जैसे ही आप वो अटेंशन देना बंद करेंगे, वो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा। 2-3 दिन तक तो उसका मन अच्छा चलेगा, मैं बताऊं, पहले तो सोचेगा क्यों, फिर पता है क्या सोचेगा, दूसरे दिन से क्या चलेगा, पता नहीं क्या समझते खुद मैंने सोचा कर दिया होगा, है ना मेरे मल्टी कंट्रोलर डिग्री केस, तो पता नहीं क्या समझती है, मैंने गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मेरा 2-3 दिन तक क्लास में यही बिहेवियर रहेगा ना, समझ रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर से पढ़ाते हैं, सारे बच्चों को अटेंशन दीजिए, जो बच्चा क्लास में बदतमीजी कर रहा है उसको अटेंशन देना बंद कीजिए और बिना उसको आई कॉन्टेक्ट दिए पढ़ाइए क्लास के अंदर। मैं आपको गारंटी देती हूँ, करके देखिए, यदि चौथे दिन, मैथ्स बोल रही हूँ आपको, चौथे दिन अगर वो बच्चा आपसे अकेले में आके बात नहीं कर लेना कि सर मैम व्हाट हैपेंड, मेरे से कोई गलती हुई है, आप मेरे को आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप इग्नोर करोगे ना, तो उनको अपनी गलती रियलाइज होगी, और फिर जब आप उनको अटेंशन वो करके फिर जब आप उनको एक्सेप्टेंस दोगे, तो वो वापस आएंगे। उनको वैसे नहीं बनना, उनको खराब करने के लिए नहीं करना है, उनको वापस एक्सेप्ट करके करना है। आप देखिए वो बच्चा कैसे काम करेगा, आप समझ रहे? इन दीज वे द थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू ऑल्सो। आप समझ रहे? ये जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं ना दिन में बच्चों को छोटी छोटी बातों पर, तो ऐसे क्यों खड़ा है, तू वैसे क्यों खड़ा है, तू पॉकेट में हाथ डाल के क्यों चल रहा था, अरे भैया कुछ चीजें तो छोड़ दीजिए। आप समझ रहे? इतना डिसिप्लिन में होता ना, वो सुना है आपने, स्प्रिंग को इतना मत खींचिए कि वो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे कि ये बच्चा जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए कुछ कर रहा है, राइट? Go with a positive attitude in your class. Go with a positive attitude towards students in your class. Criminals नहीं है वो, right? जो होता है ना कि इसको तो एक बार फांसी की सजा, इस क्रिमिनल मतलब वो criminals नहीं है, they are just normal human beings. And वो सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं? Just your attention. They just want to feel important in your eyes. That's all. And second चीज, unnecessary जितने भी behaviors हैं जो वो करते हैं, जो आप नहीं चाहते वो करें, उनको प्लीज स्टार्ट ignoring. In place of that, focus on the behaviors which you want they learn, they repeat. Got it? ये करके देखिए। ये आज की बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि काफी समय से बहुत सारी चीजें चल रही थी। आज कितनी तारीख है मैम? 14th of December, right? 14th of December, 1 महीने बाद मिले, फिर से 1 महीने बाद मिले, ताकि या फिर 2 महीने बाद मिले, so you can experiment and you can share your experiences with me. कि आपको ये इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी हुई, इसको करने से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, बच्चे पहले से ज्यादा खराब हो गए, या आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसको एक एक्सपेरिमेंट समझ के करके देखें। हम एक नई अप्रोच के साथ बच्चों को डील करके देखें। हमें मान लें कि दे आर द एडल्ट्स लाइक अस। बरगद का बीज होता है ना, किसी भी पौधे का जो बीज होता है, सीड होता है, ठीक है, उसमें वो सारी पोटेंशियल है जो एडल्ट बरगद के पेड़ में। समझ रहे? आप केवल बच्चे को इसलिए छोटा और अयोग्य नहीं कह सकते क्योंकि वो आज उसको आपको दिखा नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 महीने का बच्चा, आपको क्या लगता है कि 6 महीने का बच्चा सीखता नहीं है या उसे कुछ नहीं पता? बच्चा पैदा होने के दिन से सीखता है, मालूम है आपको? बस आपको अयोग्य क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है वो बच्चा है, वो कुछ नहीं समझता? क्योंकि वो जो उसकी एज है, उस एज के अंदर वो क्या कर सकता है, वो आपको एक्सप्रेस करके बता नहीं सकता। दिस इज द ओनली थिंग। और जितनी भी चीजें आपको लगती है ना, बच्चे बहस करते हैं, जिद करते हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं? आप बड़े ना उनसे, आप कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, वो आपको वापस थप्पड़ मार सकते हैं ना, मार दो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कि अगर मैं
हैं मेरे साथ, आपको कैसा फील होगा? पावरलेस? Yes or no? You will feel powerless. आपका ईगो मानेगा, इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसका? आप क्या करेंगे? You will find out the ways where you can make me feel the same. आप समझ रहे हैं? तो वो जो बच्चे आपके साथ बिहेवियर करते हैं उसका बस यही एक रीजन है. They want to put you in the same situation where you put it. वो आपको वो पावरलेसनेस फील कराना चाहते हैं. और एक बात याद रखिएगा, बहुत लास्ट कमेंट है मेरा, ठीक है? अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ठीक है? और अगर मैंने क्लास में एंटर किया, इफ आई एम अ टीचर एंड इफ नथिंग चेंज इन द क्लास, ठीक है, देन आई शुड then I need to reflect myself than to blame my students. Second, if I am in the class and students are late, I need to reflect upon again on myself. If I am teaching and my students are talking, again I need to reflect myself because I also remain a student. ठीक है? ऐसे भी टीचर्स हैं जिनकी क्लास में गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, सबसे लास्ट में बैठते थे और जो मनाता था करते थे. और ऐसे भी टीचर्स थे जिनकी क्लास अगर 9 बजे है तो 8:30 बजे 8:45 पर सबसे आगे बैठना है. खाना भी छूट जाए कोई बात नहीं, घर पे छुट्टी छूट जाए कोई बात नहीं. आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूं? सो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पे रिफ्लेक्ट करना बंद. रिफ्लेक्ट नहीं बोलते, को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पोज भी नहीं बोलते. यस, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे पे प्रोजेक्ट करना बंद कीजिए, ठीक है? वी आर द एडल्ट्स, वी आर द एल्डर वंस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? जिद करना बच्चों का काम है, ईगो इश्यूज बनाना बच्चों का काम है. बीइंग एन एडल्ट ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती. आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? Are you getting what I'm saying? आप सोच के देखिए कि यदि क्लास में अगर मेरे बोलने में बच्चे को फर्क नहीं पड़ता ना, मेरी आंखों से, पहली बात तो मेरी आंखों से पता जाना चाहिए माहौल. अगर मेरी आंखों से फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके बोलने से भी ज्यादा दिन फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर आपने हाथ उठाना शुरू कर दिया, पनिशमेंट देना शुरू कर दिया, उनको आपने डिसिप्लिनरी एक्शन बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो ठीक हो जाएगा. आप समझ पा रहे हो? तो अपने आप को बीइंग अ टीचर उस जगह पे स्टैंड कीजिए कि आपके बच्चे आपकी नजरों से डरते हैं. आप एक बार नजर उठा के देख लें तो उस बच्चे को पता हो कि उसको क्या करना है. वो कैसे होगा? जब आपके अपनी क्लास को अटेंड करने के, जब आपके अपने फंडामेंटल्स, आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होंगे, जब आपकी तरफ से क्लियरली वर्बली एंड नॉन वर्बली क्लियरली कम्युनिकेट होगा दैट हाउ शुड यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी रिमेन इन क्लास. ठीक है? एक वो टीचर जिसके खुद के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, जो पढ़ाना अच्छे से नहीं जानता, जिसका अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, मैं उसको दुनिया के कितने भी डिसिप्लिन बच्चे दे दूं, क्लास वॉन्ट रिमेन डिसिप्लिन. समझ रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट हैव कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, क्लास के अंदर प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है? और सेकेंडली, अपने बिहेवियर को कैसा रखेंगे? मैं बताऊं आपको बच्चों से कैसे बात करते टीचर्स. आई एम सॉरी, आई एम नॉट नेमिंग अ नेम, ठीक है? और बढ़िया, और कैसा है तू, ठीक है? और खाना ना खा ले तूने, ऐसे बात करते टीचर्स बच्चों से. तूने, तू, तुम, यस, डोंट से कि नो, आई हर्ड दिस. इफ अगर आपको मतलब इफ यू विश आई विल शो यू द रिकॉर्डिंग्स. सीसीटीवी कैमरा चलता है मैंने सब जगह. और फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो बच्चे जिनके माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है, वो बच्चा तो ये नहीं दे सकता कि कोई उससे आपसे कम क्या करके बात करे. हम क्या बोलते हैं? तू, तुम, तूने. और खासकर हम सॉरी फॉर दिस, बट 9th 10th 11th 12th बड़ी क्लास के टीचर्स, उनको लगता है कि हम तो टीचर है ही नहीं और वो बच्चे है ही नहीं. सो काइंडली मेक अ सेफ डिस्टेंस.
आप उनके टीचर हैं, दोस्त नहीं है। दोस्त पता है कैसे बनना है? दोस्त बनना है, जो मैं बात कर रही थी कि हैव अ कनेक्शन, हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ योर क्लास। अगर कोई पूछ ले तो आपको हर बच्चे का पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्लास में कैसे रहता है, क्या चाहता है, क्या बिहेवियर है। बी द फ्रेंड इन दैट वे एंड डू व्हाट इज राइट फॉर दैम। अदरवाइज यू नो व्हाट हैपेंस, वो बच्चे हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, आज छोटे हैं, ठीक है, आज आप जो चाहे कर सकते हैं, राइट, लेकिन आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद when they get mature, आपको पता है क्या होगा? पता है वो क्या कहेंगे आपके पास अगर कभी मौका मिला तो? मैम सर मैं तो बेवकूफ था, मैं तो ना समझता, आप तो समझदार थी ना, आपने क्यों नहीं रोका मुझे, आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं टोका, या आपने कुछ क्यों नहीं किया। और जितना भी आपको लगता है ना कि आप ये करोगे तो वो गलत समझेंगे, नहीं, दे अंडरस्टैंड कि आपने उनके साथ सही किया या गलत किया। तो जबरदस्ती स्टूडेंट फ्रेंडली बनने के लिए वो काम मत कीजिए जो बीइंग एडल्ट आपको नहीं करने चाहिए। ये सारे बच्चे कुछ समय बाद एडल्ट हो जाएंगे, ये वो हर चीज बिना बोले समझ जाएंगे जो आज उनको समझ में नहीं आ रही है, राइट। और आपको पता है आपकी टीचिंग की वो कब है? आपके टीचिंग की सफलता तब है जब आज नहीं, आज से 3, 4, 5, 6 और 7 साल बाद जब ये बच्चे कुछ बन जाए, ठीक है, तब ये आपके पास आए और आपसे कहें थैंक यू, यू आर द वन हु हैंडल्ड मी, हु गाइडेड मी, हु सपोर्टेड मी और हु करेक्टेड मी, राइट, ऑन अ टाइम व्हेन आई वाज नीडेड इट द मोस्ट। समझ रहे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ? मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, जब ये बात चलती है तो मुझे पता होता है बच्चों का मेरा सबसे, मतलब आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर जिसका कभी तारीफ नहीं होता पढ़ाते समय, लेकिन मैं उनको हमेशा कहती हूँ यू विल कम आफ्टर 2, 3 और 4 years एंड से थैंक यू टू मी। और आपको पता है यूनिवर्सिटी में 5 साल हो गए मुझे, और उससे पहले से पढ़ा रही हूँ। आपको पता है दे नाउ ऑल सेंट, व्हाई? बिकॉज I never did what is good for me, what is convenient for me. I always did what I need to do in that situation. जहां बच्चे के लिए क्या सही है। आप इसको ये मत समझिए what to call it boasting. I'm not boasting. I'm just telling. You know what should be the image in the children's eye? आपको पता है आप लोगों की क्या इमेज होनी चाहिए बच्चों की आंखों में? टीचर की क्या इमेज होनी चाहिए बच्चों की आंखों में? पेरेंट्स की क्या इमेज होनी चाहिए बच्चों की आंखों में? कि अगर वो कोई गलत काम करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डर किससे लगना चाहिए? आपसे। उनको पता नहीं चल जाए, बाकी पूरी दुनिया को पता चल जाए, बस मैडम को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तो रात के 2 बजे भी और रात के 3 बजे भी और सुबह के 4 बजे भी दे हैव करेज एंड फेथ एंड द ट्रस्ट टू कॉल यू, कि पूरी दुनिया में कोई उनकी मदद करे ना करे, कोई उनको समझे या ना समझे, पर आप समझेंगे। अगर आप ये इमेज बना पाए हैं अपने बच्चों की नजरों में, देन यू आर सक्सेसफुल एज अ टीचर्स। और अगर नहीं बना पाए हैं तो अभी बच्चे का बहुत दूर की बात है, अभी खुद पे बहुत काम करने की जरूरत है। प्लीज डोंट टेक दिस सेशन एज अ लेक्चर, इट इज मोस्ट नीडेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। मुझे लगा कि हम सब शायद बातों को खुद समझते हैं, बट व्हेन द थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई टुडे एड्रेसिंग यू। हर बच्चा खुद सीखता है, हर बच्चा खुद ही सीखेगा, हर बच्चा खुद ही बनेगा जो बनना है, बट हमारा एक काम है, हम फैसिलिटेटर्स हैं, वी प्रोवाइड द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट तो हम ऐसा सेफ प्रोवाइड करें ना ताकि बच्चे उसमें मोटिवेटेड हो टू लर्न। वो माहौल प्रोवाइड करना तो मेरा काम है ना। क्या कोई व्यक्ति अनसेफ माहौल में सीख सकता है? क्या कोई बच्चा, क्या आप सीख सकते हैं ऐसे माहौल में जहां पर आपको हर समय डर हो कि आपको जज किया जाएगा, आपको टोका जाएगा, आपको बोला जाएगा? मैंने पहले भी एक बार बोला है, किसी भी व्यक्ति को खत्म करना हो ना तो उसका एक तरीका है, पता है आपको उसको मारने की जरूरत नहीं है, केवल एक तरीका है किसी भी व्यक्ति को खत्म करने का, पूरी तरीके से खत्म करने का। उसका आत्मविश्वास खत्म कर दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दीजिए,
और आपको पता है वो सबसे इजी है करना, बताओ कैसे करते हैं? जो हम लोग रोज देखेगा कभी कि आप लोग उस तरीके को यूज करते हैं कि नहीं करते। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो उस पर दिन भर टोका टाकी और छीटा कश, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत खड़ा, ऐसे मत खा, ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ चाइल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इमेज। उसके बाद आप चिंता मत करिए, आप चाहोगे ना कुछ भी कर लोगे, पूरी दुनिया की कोई ताकत उसको उठा नहीं पाएगी, क्योंकि आपने उसको अंदर से खत्म कर दिया। क्या थी वो इंपॉर्टेंट चीज? अगर बीइंग द टीचर और बीइंग द एल्डर, अगर आपका पर्पस उसको सिखाना था, उसकी ग्रोथ थी, अगर ये पर्पस था, तो क्या होना चाहिए था? उल्टा होना क्या चाहिए था? हर छोटी छोटी बात पर, प्रोसेस पर एप्रिशिएशन। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. आप लोग सोच के देखिएगा कि जो बिहेवियर हम क्लासेस में बच्चों के साथ करते हैं, अगर वो सीनियर हमारे सीनियर्स हमारे साथ करना शुरू करते क्लासेस, हाउ विल बी वी विल बी। और मैंने इसीलिए आपको बुलाया है, सो यू वंस प्लीज रिफ्लेक्ट अपॉन। बच्चों को डील करना, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट अ बिग इश्यू, क्योंकि उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। वो बेचारे खाली वो है, जो आसपास से मिल रहा है वो उसको एज इट इज ग्रास्प कर रहे हैं। अभी वो बस आपके जितने चालाक नहीं है, अभी वो हमारे जितने वो नहीं है, मतलब समझे? उनके लिए रूल्स आर रूल्स आर एब्सोल्यूट रूल। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से कहते हो कि टीवी देखते हुए खाना खाना गलत है, तो उनको लगता है ये एब्सोल्यूट रूल है, और अगर मेरे लिए गलत है तो मम्मी के लिए भी गलत है, पापा के लिए भी गलत है। लेकिन आप क्या बोलते हो? नहीं, मैं तो खाऊंगी, तू मत खा। ऐसे फूल तोड़ना गलत है अपने घर के गार्डन से, दूसरे के घर के गार्डन से इज अ मैटर ऑफ एप्रिशिएशन। बच्चों को ऐसे अपोजिट इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते। और आपको पता है इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये जो कहा जा रहा है ना, ये सिर्फ कहने के लिए, तो इसको फॉलो नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि ये तो सिर्फ टीचर्स कहने के लिए बोलते हैं, तो खुद ही, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, क्लासेस में टीचर्स को बच्चों से कहते हैं आपस में लड़ाई मत करो, है ना, एक दूसरे को फॉरगिव कर दो, कोई बात हो तो। और मैं टीचर्स को दिखाऊं क्लासेस में, आपको काम ना आ गई, काम ना, तुम उसको देखेंगे, पता नहीं कर। आपको क्या लगता है वो 24 घंटे के बाद एक ही काम है? पता है, कहने की बातें हैं, हमारे लिए रूल्स अलग है, टीचर्स के लिए रूल अलग है, ठीक है। और आपको पता है वो क्या सोचते हैं सब दिनों में? वो आपका सबसे पहले पता है क्या करना बंद करते हैं? रिस्पेक्ट करना बंद करते हैं, ठीक है। और एक बात लिख लीजिए आप, ठीक है, अगर आप जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, आप जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, जिस व्यक्ति को अपने से बड़ा नहीं समझते, जिस व्यक्ति को अपने से ज्यादा ज्ञानवान नहीं समझते, या किसी भी तरीके से अपने को बड़ा नहीं समझते, आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते। तो जब आप बार बार किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या किसी बात के लिए बच्चे को बार बार कोई बात बोलते हैं, तो बच्चे को पता क्या लगता है? ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये मेरे पीछे पड़ी है, ये कामना मैम जो पता है मम्मी मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी है, ये जब देखो जब मेरे को टोकती रहती है। अब अगर कामना मैम इनके लिए ना अमृत भी ले आए ना, मतलब कामना मैम इनके लिए कुछ भी कर ले, उस बच्चा के लिए वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट रिस्पेक्टिंग हर। अरे हिटिंग, आप बताइए, अगर ये इमेज आपकी बच्चों की नजरों में बन जाती है, कुछ सिखा पाएंगे? हमारे भारत के अंदर हमारे जो पुराने जो वो है, हमेशा बड़ों के पैर छुए जाते हैं, कहते हैं बड़ों के पैर छू, टीचर्स के पैर छू। आपको क्या लगता है टीचर के पैर छूने से टीचर्स का कल्याण हो जाएगा, टीचर का कुछ भला हो जाएगा, उनको कुछ मिल जाएगा? नहीं। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप झुकते हैं तब विनीत होते हैं। झुकते किसके आगे हैं आप? जिसको आप सम्मान करते हैं, जिसको किसी भी तरीके से अपने से बड़ा समझते हैं, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आप ये क्लासेस में कर रहे हैं, आप मुझसे गारंटी ले लीजिए बच्चे आपसे, अगर आपका बच्चा आपको सम्मान नहीं करता, वो आपसे नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। कहने में शायद बहुत अजीब बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है। अगर आप सोचिए, अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि सारिका मैम मेरा भला चाहती है, ठीक है, सारिका
तो अगर मैं आपके आपकी गलती भी बताऊंगी तो आप उसको कैसे लेंगे? बिकॉज मैम लव्स मी, मैम मेरा अच्छा चाहती है, तो मैम ने मेरी भलाई के लिए बोला है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपका बुरा चाहती हूँ, तो अगर मैं आपको कुछ भी बोलूंगी तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, राइट, अगर आपको ये फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, तो अगर वो आपको हॉस्टल भेजे तो अच्छे के लिए भेज रहे, और अगर आपको लगता है कि प्यार नहीं कर दे तो आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो अगर हम बच्चों से वो कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते, अगर बच्चे हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उन बच्चों को कभी कुछ नहीं सिखा सकते। और आप जो बच्चों को सिखाते हो ना बोल के, उससे कहीं ज्यादा बच्चे जो है वो आपके बिना बोले सीखते हैं। आपके घरों में कितने लोगों को बोल के सिखाया गया बड़ों का सम्मान करना? आपने देखा है आपके घरों में ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बच्चे माहौल से ज्यादा सीखते हैं। मैं मैम को बताया था बहुत समय पहले, मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरे माँ पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ जिया, और मैं सब खुद ब खुद कैसे सीख गई मुझे पता ही नहीं चला। यही होता है, राइट? सो नाउ आई एम एंडिंग इट। आई थिंक जो आज का टुडे का जो मैंने जितनी भी बात की, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। और मैं चाहती हूँ कि एक बार हम ईमानदारी से रिफ्लेक्ट बैक करें कि जिन चीजों को हम बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम कहकर साइड कर दे रहे हैं, क्यों पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब तक हम ये कहते हैं ना कि ये दूसरे की प्रॉब्लम है, राइट, दूसरा गलत कर रहा है, तब तक सुधरना किसको है? सुधरना किसको है? मैं कुछ पूछ रही, मैंने पूछा आई फील, ठीक है, कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, उसमें ना इनकी गलती है, उनकी गलती है, तो सुधरना किसको है? सोचिए, मेरी मदर लॉ से रोज लड़ाई होती है। जस्ट मिनट, मेरी मदर लॉ से रोज लड़ाई होती है, ठीक है, और मुझे क्या लगता है ये अननेसेसरी मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये मेरे को दिन भर टोकती रहती है, ये मुझे परेशान करती है। तो बदलना किसको है? प्रॉब्लम किसकी है? समझ रहे हैं? तो ओनिंग द प्रॉब्लम क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे और समझेंगे कि किसी दूसरे की समस्या है, तब तक हम उस पर कोई काम नहीं करेंगे। जब सबसे पहले हम ये स्वीकार करेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, वी ओन द प्रॉब्लम, देन ओनली वी वर्क अपॉन इट। और मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे कुछ भी नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एडल्ट का विषय है, लेकिन मैक्सिमम 99% चीजें कंसर्न का विषय नहीं है, राइट? सो टुडेज सेशन इज जस्ट फॉर अ रिफ्लेक्शन। प्लीज रिफ्लेक्ट बैक, experiment in your class, go in your class with a new energy and with a new thought, and we will meet again after a 1 month or so, देखते हैं कैसे, and kindly share your experiences कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, काम किया या नहीं किया। That's all from my side.